Hello students, today we shall discuss about the two group CX disconnection of your paper organic synthesis second. I have taken an example of number first, that is, this is the sulfide molecule. In this sulfide molecule we can disconnect the CS bond from this position. Then we shall get this is the nucleophile number 2 is the nucleophile, and number 3 is the bromide molecule. This is the bromide molecule is the electrophile. This is the very simple reaction we have studied in the last class. And for the synthetic procedure, SN2 reaction mechanism will follow. And if we look at the another example, number 4, this is the target molecule. In this molecule we can also disconnect CS bond from this position, and we shall get the nucleophile PHS minus. This is the nucleophile, this number is 2, and number 5 is the electrophile. This is also we can call one group disconnection. But the thing is that we can very reasonably take the same decision as the sulfur compound number 2 nucleophile and the alkyl bromide as the electrophile. But if we look at the carbon synthone, then the idea of the two group disconnection generates. That is, यहाँ पर आपका जो सेकंड जो फंक्शन ग्रुप है, इस फंक्शन ग्रुप को हमने वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में नेग्लेक्ट किया है. इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं. 1,3 डाई एक्स रिलेशनशिप, मतलब 1 मीन्स 1,3 डिस्कनेक्शन रिलेशनशिप. What is 1,3 disconnection relationship? We can recognize the function group by the number, and we can it doesn't matter कि हमने कहीं से भी इसका नंबरिंग कर सकते हैं. मैंने नंबर दिया कार्बनिक ग्रुप को, कार्बन जो है उसको 1 नंबर, then 2, then 3. तो we can disconnect this CS bond from this position and we shall get the nucleophile. This is number 2 plus electrophile. This is number 6. This electrophile is the synthone, and for the synthone the reliable reagent is 7. Number 7. This is the enones, and the carbonyl group can make the cationic center in the 6 electrophile. Or for the this is the reaction, and this reaction is called as conjugate addition of thiolate anion number 2 to enone 7. Okay, then enolate intermediate is formed. This is the enolate intermediate, and this enolate intermediate capture the proton from the benzene thiol to give the target molecule number 4 and regenerate the nucleophile. यहाँ से इनोलेट जो है इनोलेट इंटरमीडिएट बना. इनोलेट इंटरमीडिएट में कार्बोनिल ग्रुप जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ से ये प्रोटॉन कैप्चर करेगा किससे, थायोल से कैप्चर करके वापस न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और आपका टारगेट मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाएगा. अब हमने इसी रूट को क्यों चुना, उसके रीजन है. पहला रीजन तो ये है कि इसमें जो इनोन बनता है वो नेचुरली इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और वो राइट पोजीशन पर इसमें होता है. ठीक है, और इसमें ब्रोमाइड जो है वो लिविंग जो SN2 टाइप 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन में जो ब्रोमाइड है वो लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है, और वो वेस्टेज के रूप में जाता है. इसलिए हमने इस रूट को चुना. इसमें कोई ब्रोमाइड का रिमूवल नहीं हो रहा है. ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं है. दूसरी बात है कि दोनों फंक्शन ग्रुप कोऑपरेट करते हैं CS बॉन्ड बनाने में, कार्बन सल्फर बॉन्ड बनाने में दोनों का कोऑपरेशन होता है. तीसरी बात है कि हमने इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और टेम्परेचर यूज़ नहीं लिया है. ओनली कैटालिटिक वीक बेस इज़ नीडेड. ठीक है. फोर्थ कंडीशन इज ब्रोमाइड इज़ लाइकली टू एलिमिनेट अंडर द रिएक्शन टू गिव द 7 एनीवेज.
ठीक है, 7 मीन्स दिस इनोन रिएजेंट। अब देखिए 1,3 डिस्कनेक्शन रिलेशनशिप। तो 1,3 डिस्कनेक्शन रिलेशनशिप में मैंने बता दिया था कि इसका नंबरिंग हम से किसी भी फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। तो बेसिक जो एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन इज दैट टू हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट द राइट पोजीशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में बी कार्बोनिल ग्रुप और CN group. Okay, and the X may be oxygen, X may be sulfur, X may be nitrogen. In sulfur, in condition of sulfur and oxygen, it ये फॉलो करेगा कॉन्जुगेट एडिशन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। बट यदि आपके पास में नाइट्रोजन X इक्वल टू नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की कंडीशन में देर इज़ 2 पॉसिबिलिटी ऑफ द सिंथेटिक प्रोसीजर्स। क्या? पहली कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल जो नाइट्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल दैट एड्स टू डायरेक्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल एड्स बाय द कॉन्जुगेट एडिशन। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल की जो रिएक्टिविटी है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। इसलिए जो नाइट्रोजन वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें उसकी रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है उसका हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक मैकेनिज़्म बताया है। उस मैकेनिज़्म के अंदर यदि x इक्वल टू क्लोराइड है, x इक्वल टू क्लोराइड है और एल्डिहाइड है, यदि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो यदि एल्डिहाइड है या एसिड क्लोराइड है, तो उस कंडीशन में ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है वो अटैक करेंगे टू द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, और यदि आपके पास में एस्टर या कीटोन है, देन यू विल गेट द कॉन्जुगेट एडिशन टाइप ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, राइट। सो दिस इज द 1,3 डिस्कनेक्शन रिलेशनशिप। और यदि आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव द कार्बोनिल ग्रुप इन द टारगेट मॉलिक्यूल, देन you have to follow the function group interconversion first of all. Then if there is a amino alcohol in this molecule, there is 1,3 disconnection relationship but no carbonyl group. So first you introduce the carbonyl group by the functional group interconversion. Then you can make also the यहाँ पर आप इसको एस्टर में कन्वर्ट करने की बजाय एल्डिहाइड में कर सकते हैं। लेकिन एल्डिहाइड में प्रॉब्लम वही है कि एल्डिहाइड के अंदर आपको जो है वो अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो एल्डिहाइडिक जो कार्बन है वहाँ पर हो सकता है। सो इसलिए वी डोंट प्रिफर द एल्डिहाइड एंड एसिड क्लोराइड्स, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको एस्टर में कन्वर्ट, ये मैटर नहीं करता है कि आप इसको मिथाइल एक्राइलेट बनाते हैं या इथाइल एक्राइलेट बनाते हैं, एस्टर कोई भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1,3 डिस्कनेक्शन, इसको कन्वर्ट किया एस्टर में, देन 1,3 डिस्कनेक्शन, देन यू विल गेट दिस न्यूक्लियोफाइल, दिस एमीन, एंड दिस इज द मिथाइल एक्राइलेट। नेक्स्ट स्टडी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।